Hello, hello everyone. A very warm welcome from Paper Crux once again. And today we have Vivek sir with us. Give me just a minute. I'll be pinging him to join. Oh, Hello. yes. Hi Vivek sir. Hi, Give hi. us just Good evening. yeah. Good evening. So a very good evening to all of you. All of you have joined. So today's session is going to be super extremely important for you all. We have with us Vivek Tiwari sir. He is AIR 164 CSE 2021. And we are exceptionally thankful to Vivek sir for taking out time from his otherwise extremely busy schedule. And we are super excited for this conversation. So, thank you, sir. Thank you for joining. And I hope all of the aspirants they are fixed on their seats, so we could start this session. But before we begin on taking questions from Vivek sir, questions from the students and the aspirants, we have from Paper Plus few questions of our own. सर जैसे आपकी जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा और उसके पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे पिछली बार हमारी जो पुलकित सर के साथ कॉन्वर्सेशन थी दैट वाज मोर ऑन द हाउ टू प्रिपेयर पार्ट एंड दिस टाइम वी आर गोइंग मोर डीप डाइविंग मोर ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स सच एज आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न इंडिया एंड उसके बारे में विवेक सर इज गोइंग टू गाइड अस। सो सर आपके जीएस वन में बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं, मतलब इतना 108 मार्क्स बहुत ही रेयरली किसी का आता है। सो इन दिस रिगार्ड आई हैव थ्री क्वेश्चन स्पेसिफिकली। पहला कि आप हाउ टू मेक आवर आंसर्स डिस्टिंक्ट जिससे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके। फॉर दैट जैसे हम लोगों को डिमांड ऑफ क्वेश्चन अगर कुछ भी है तो हम लोगों को उसको जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इंट्रो का जो 2-3 लाइन लिख दिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड है वी शुड बी ऑलवेज राइटिंग दैट इटसेल्फ। वी शुड नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और फिर कंटेंट के लिए जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ते हैं जीएस 1 के लिए, वी शुड बी रीडिंग देम अगेन एंड अगेन। बट एक एल्गोरिदम बना लेना रहेगा हम लोगों को कि जो भी जैसे मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा कि रोल ऑफ महात्मा गांधी इन social, political, and economical times or economical angles in those days. Huh? So what I used to do whenever I used to find ki and hai, so I used to make one heading like role of Mahatma Gandhi in economical, role of Mahatma Gandhi in political. So that tells कि I have equally addressed the each part of the question. So अगर एग्जामिनर को भी मार्क्स देना होगा तो वो वन थर्ड ही देगा। सो अगर आपने एक एक हेडिंग के अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट्स भी लिखे तो दैट गिव्स कि हाँ आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को ही एड्रेस किया है। So this was my whole राइट। strategy with respect to GS1 ओके। while answering. सो सर जैसे आप ये बता रहे हो कि क्वेश्चन अगर अलग अलग पार्ट में है तो उसको हम Yes, सेपरेट पार्ट्स में करके आंसर करें और yes, इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स इसको करके। yes. Bullet. We should be numbering our points 1, 2, 3, 4. Like we should be राइट tell एंड that we are writing this much number of points for each subparts. got it. And sir, if we want to fetch more marks, like some advantage from other candidates, is there some specific thing like giving examples or certain things that we have to keep in mind? Uh, See what I did, because in the GS1 syllabus is very vast, like history, whole history is very vast, world history, world geography, huh? So my plan was just to revise them at an average level itself, huh? And later go just try to answer whatever has been asked. So I couldn't Right. do anything like something very specific, but my process was to follow that algorithm in which examiner should be able to see what has been asked, that has been written. Got it. Got it. So straight to the point, but Yes, completing everything that the question has demanded. yes, yes. So, and for this preparation, did you use any value additions like from other, some sort of other study material? See, for GS1, our means data and all those things, data and committees, which I referred from a particular institute known as SUNES. So I have prepared all the data for each topics under, especially under the Indian society part. So whenever I used to write answer for women or urbanization or any other thing, so I used to quote a data, especially in the intro part. And if I'm able to conclude with some good committees with regard to that topic, so I used to do that, especially under the Indian society part. Okay, okay. Mhm. Sir,
तो अब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो Yes. इसमें सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जनरली क्या होता है कि इस सब्जेक्ट से 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, बट इसका जो सिलेबस है दैट इज वेरी वास्ट। तो इसके लिए आप द क्वेश्चन इज हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। Especially for mains or prelims? फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स, बट बिकॉज मोस्टली फॉर मेंस, क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं इससे मैक्सिमम। Yes, sir. So in mains, my more focus was towards reading the Nitin Singhania and not whole chapters, especially those art, dance forms, and other specific chapters, paintings, religions, and all those things. Along with that, to read the whole political history, especially Indian means from ancient to medieval. I used to read Tamil Nadu book. For the mains, I only used to read Tamil Nadu book along with the Nitin Singhania book. गॉट इट। Mm-hmm. एंड सर, जैसे आपने सोर्सेज के बारे में बता दिया, तो डू वी नीड डिफरेंट नोट्स फॉर मेंस और द प्रीलिम्स, विल जस्ट सफाइस? Especially in the history part, I don't think that we should be making a segregated notes. Especially we should be reading the whole thing, and towards the main Right. examination we should be concising our domain. Like in the prelims we read very facts and data, but in the mains part we should be seeing the previous year question, and accordingly concise direction of ours should be changed towards that. One more thing I would like to add here, like while preparing for the prelims we read 6 to 12th NCERT also, especially of Indian ancient and medieval, and I had made some short notes from those new NCERTs. So while preparing for the mains also, I used to means they were only 50 to 50-60 pages of my notes for new NCERTs. So I used to revise them also. So if any particular specific topic or any area has been asked from the new NCERT, so that I am able to cover them. गॉट इट। सो सर, जैसे आपने बोला कि नोट्स को थोड़ा और कंसाइज कर लेना चाहिए, तो हम लोग पेपर क्रक्स में भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्पेसिफिकली फॉर द मेंस पार्ट वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग द नोट्स वेरी कंसाइज। तो उसमें आपका क्या सजेशन होगा कि कैसे उसको और कंसाइज बना सकते हैं, जैसा आपने अभी बोला? लाइक जैसे एग्जाम में घुसने से पहले वी शुड मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि हर टॉपिक का 5-7 पॉइंट भी अगर अपने को पता रहे, हाँ थोड़ा बैकग्राउंड पता रहे और कुछ कोर चीजें राइट। पता रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे वही 5-7 पॉइंट भी अगर आपको आता है, सो यू विल बी एबल टू राइट ए वेरी गुड आंसर, मीन्स नॉट एन एवरेज, वेरी गुड आंसर आप उन 5-7 पॉइंट से लिख सकते हो। सो इन दैट वे शॉर्ट नोट्स और जो आप बता रहे हो पेपर क्रक्स कंसाइज नोट्स बनाना चाह रहा है, दैट विल बी हेल्पिंग अ लॉट। राइट राइट, ओके सर। सर, कमिंग टू मॉडर्न इंडिया अगेन, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, बट जब हम इसका सब्जेक्ट का रेंज देखते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू रीड। सो इसमें अभी आपने क्या सोर्सेज प्रेफर किए एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? In modern India, mainly I read that whole prelims thing, that is spectrum, but whole end to end, especially from the advent of Europeans till the last page, that appendix and all those reforms which were done, police reforms, judicial reforms, and those things, that I had read in the modern India. While mains, I used to read them analytically, because in that there are various boxes in those chapters in which it has been told that how the things were moving on in those days, and detailed analysis has been done. So while preparing for the mains, I used to focus more on them, those topics also. So sir, इसमें one very specific question is, did you read the Bipin Chandra NCERT? See, I couldn't read the Bipin Chandra NCERT because one thing I particularly believe, just as you have told, ki we should be concise and we should be concluding something. So I couldn't read those things which were in the literature form. Instead, I used to read those things in which things have been summarized, like in the spectrum. At the last of the chapter, things have been summarized, and if you need to see more, then go into chapter itself. So I always tried to pick up those sources itself in which the things have been summarized, sort of. So like Nitin Singhania is also that way, that there are headings, subheadings, and those things. So those sources Yes, I yes. prefer more. Right, got it. So, and we have also seen some questions from post-Mughal era and early 18th century coming. And how did you prepare for those things? Like I said, that from advent of Europeans, in that various chapters have been given to post-Mughal era also, and in the Right, right. ancient and medieval also, there are in the medieval last chapters. So we should be focusing a bit more on those, because the questions have been coming from those eras these days. Right, right. Because generally the students, they tend to ignore those parts. So we should not, you are saying that we should not ignore any part that is given in UPSC syllabus. Sure. Right. And coming to world history and post-independence, what were your sources in world history and post-independence? Generally people ignore these world history and post independence, like they study only in the mains Right. time. I had read this previously also,
स्पेशली फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री आई रेफर टू द श्री राम्स नोट्स. एंड लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक दिक्कत आती है कि अगर आपको कंटेक्स्ट पता है तो डायरेक्ट अगर आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे मैं इन माय नॉन कोर टाइम जैसे कुछ भी अगर कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, तो उस समय मैं कोई भी जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टडी आईक्यू करके सर्च करता था. ए वीडियो यूज्ड टू कम, उसमें आधे घंटे में पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ जाता था. बट लेकिन जो पढ़ना है, जो रिवीजन करनी है, दैट ओनली यूज्ड टू बी गेट डन फ्रॉम द श्री राम के नोट्स. सो माई वर्ल्ड हिस्ट्री का ये था कि डर खत्म करना है टॉपिक्स का, तो वीडियोस देख लो, लेकिन अगर उसके कुछ टॉपिक्स 5-7 पॉइंट दिमाग में लेके जाने हैं तो एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करो. फॉर दैट आई यूज्ड टू रिवाइज द श्री राम सर का नोट्स, श्री राम सर. यस सर. सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया. इसमें 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि कैसे आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया. जैसे जब भी आप कभी खाना खाते हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कैसे कोई वीडियो लगा लेते हैं. बट देन कई लोग क्या होता है कि वीडियो देख के उनको लगता है कि मेरा तो टॉपिक कवर हो गया. हाँ, यस, यही कह रहा था. लाइक कई बार आपको लगता रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एक्चुअली रीडिंग अनलेस अनटिल हम उसको समराइज नहीं करते किसी एक दो पेज में. So that also I used to do immediately. श्री राम के नोट्स से रेफर करके साइड में उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना. सर इसमें हम लोग भी कुछ सोच रहे हैं, मतलब एट पेपर क्रक्स वी आर आल्सो प्लानिंग समथिंग. सो विद we are trying to take your suggestions on this, like how you use the content from these topics in the essay and get examples for GS4 as you had told us that it was one of your strengths. लाइक जैसे जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव यूज करते हैं. और जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, अपने इंडियन हिस्ट्री के भी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं. इन दैट वे ऐसे में मैंने इवन मेंस के भी टाइम में, जो रियल मेंस था एग्जाम, उसमें मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ कंटेक्ट यूज किए थे. सो दैट वे मैं ऐसे ही करता था कि ऐसे का कोई पेपर लिख रहा हूँ तो इंडियन GS1 के सारे टॉपिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके सब हेडिंग्स अगर बना रहा हूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री सब हेडिंग में वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई 1-2 पॉइंट जो उस टॉपिक से रिलेट हो सके, आई यूज्ड टू कोट देम और उसको मेंशन करता था. So sir, coming to geography, what were the sources that you undertook in geography? See, before actually इसके ये it was my third attempt, and in the previous 2 attempt I used to read 11th 12th NCERT one, 11th 12th जो generally people say, but I myself personally found that it was not holistic in the sense चीजें indicative ज्यादा दी रहती हैं, you need to understand and you need to elaborate more on them. So what I did this time was a PMF IAS that was very holistic and very comprehensive source for the geography, and I read that again and again even for the prelims and the mains. बस मेंस के टाइम में वी गेट मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द मेंस का टॉपिक, लाइक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी उसकी चीजें, जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखते हैं, उन वाले एरियाज पे ज्यादा फोकस था. प्रीलिम्स में तो एंड टू एंड बार बार रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी रहती है. और वन मोर थिंग, जैसे आपके पास अगर आप PMF IAS को रेफर करेंगे तो आपके पास कई सारी PDF हो जाएंगी, 7-8 PDF हो जाएंगी. व्हाट शुड बी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेंस का रिवीजन ज्यादा स्पीड में किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू प्रीलिम्स. तो आपको कुछ काम की चीजों को हाईलाइट रहना चाहिए कि आपको मेंस के टाइम में उनको केवल रेफर करना है, 2-3 बार रीडिंग मार लेनी है, तो आप मोर देन गुड एवरेज आंसर लिख के आएंगे वहाँ पे. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. आप ये बोल रहे हो कि अगर हम प्रॉपर्ली हाईलाइट कर लें चीजों को, सो मेंस इज मच मोर इजियर देन टू प्रिपेयर देन प्रीलिम्स. रिवाइजिंग मेंस का बुक्स, लाइक इवन आप स्पेक्ट्रम में रिवाइज कर रहे हो क्योंकि आपको फैक्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं याद करना है. सो दैट इज मोर इजियर. आप एक बार गो थ्रू भी कर जाएंगे एग्जाम से पहले, लास्ट 10 दिन में आपका काम हो जाए, प्रोवाइडेड यू हैव दैट एबिलिटी कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आप एड्रेस कर रहे हो कि नहीं. Absolutely, yes. And so we are also, like at Paper Crux, we are thinking that whether previous year questions of mains, would they be helpful for covering the geography section? Obviously, yes, sure. ज्योग्राफी में मैंने मतलब जैसे उन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करता था, जैसे PMF IAS की जो सोर्स दी थी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रखे थे, तो आई यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन मोर ऑन दोस टॉपिक्स जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेडली सवाल आ रहे हैं टाइप. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना सब है, एम्फेसाइज ज्यादा करना है. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ज्योग्राफी में हमने ये देखा है कि जो पैटर्न है इट इज समवट, जो क्वेश्चंस का रेंज है, जैसे अर्थक्वेक पे आता है तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, मतलब पढ़ना तो हमें सब है, बट एम्फेसिस हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करें तो हम 70 to 80% चीज कवर कर लेंगे. श्योर, दैट इज वेरी. एंड सो कमिंग टू सोसाइटी सर, व्हाट वर योर सोर्सेज इन सोसाइटी? यस, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के लिए क्लास 12th की NCERT आती है अलॉन्ग विद वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, शायद विजन IAS.
तो मैंने दोनों सोर्सेज से पढ़ा एंड आई मेड माय ओन नोट्स. आई एंड वन ऑफ माय फ्रेंड राकेश, वी मेड आवर ओन नोट्स. और फिर हम लोगों ने टॉपिक जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, इंडिया विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज हुए, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज हुए. सो हम लोगों ने फाइनली अपने नोट्स बना लिए थे, बट नोट्स वर मेनली मेड फ्रॉम दिस इंडियन सोसाइटी एंड द वैल्यू एडेड मटेरियल. बट वो जो इंडियन सोसाइटी वाली एनसीईआरटी है, दैट गिव्स मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टॉपिक्स. जैसे कास्ट हुआ या कोई भी टॉपिक जो इंडियन सोसाइटी के अंदर आते हैं, उसमें अगर आपको थोड़ा एनालिटिकल और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इंडियन सोसाइटी के नोट्स के साथ आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा ऐड करके तो उसको बना सकते हैं आप नोट्स. Got it. Got it. And obviously, you must have found NCRTs useful for this. हाँ, इंडियन सोसाइटी का एनसीईआरटी इज वेरी यूजफुल फॉर these topics under the Indian society section. Right, right. And in recent years, we have seen that there have been some trend change in its questions from like this section. So, do you observe this trend and how do you tackle this? मेरा जैसे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन का मेरा जो अपना स्ट्रेटेजी रहता है, मुझे वो कर लेना है जो सिलेबस का है. एग्जामिनर विल आस्क व्हाट ही वांट्स टू आस्क. सो मैं उसके पार्ट को अपने नॉलेज बेस से ऐसा दिखाते हुए कि आई एम ट्राइंग टू एड्रेस हिज डिमांड लिखूंगा मैं वही जो मैंने पढ़ा है. सो माय होल फोकस यूज्ड टू बी दैट कि जो टॉपिक सिलेबस है ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें हमेशा कवर्ड रहनी चाहिए. और क्योंकि क्वेश्चन तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, तो वी कांट बी वेरी मच फोकस टुवर्ड्स कि जैसे किसी साल कुछ आ गया, किसी साल कुछ आ गया, तो हम अपना डायरेक्शन बार बार ऐसे डाइग्रेस नहीं करते रहेंगे. वी शुड बी रीडिंग ऑल दोस टॉपिक्स गिवन अंडर द इंडियन सोसाइटी सेक्शन, और जो क्वेश्चन आएगा विल बी डीलिंग देम. इवन हम लोग टेस्ट सीरीज के दौरान ऐसे सवालों को डील करना सीख जाएंगे कि एग्जाम में भी उस चीज को डील कर लेंगे. वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस छूट गया. फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे जनरली बच्चे मतलब पीपल रीड सम एनसीईआरटी और जो विपिन चंद्रा, आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्ट बुक. सो व्हाट आई डिड वाज GS1 के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में अनुदीप दुरु शेट्टी 2017 रैंक 1 सर थे, उनके नोट्स हैं. दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड किसी पर्टिकुलर बुक की समरी ही है वो, किसी एनसीईआरटी या किसी विपिन चंद्रा की चैप्टर वाइज समरी है. सो यू कुड बी डूइंग दोस. एंड थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना हो तो जैसे इंदिरा गांधी के डेज, शास्त्री जी के डेज या राजीव गांधी जी के डेज, उनको आप गूगल सर्च कर करके कोई पर्टिकुलर सोर्स से आप उनको रेफर कर सकते हैं. लेकिन अनुदीप दुरु शेट्टी सर के नोट्स आर वेरी वेरी मतलब गुड फॉर दोस. मतलब आप कम समय में विद इन 3-4 days यू कैन बी कवरिंग दोस टॉपिक्स. गॉट इट. सो आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना चाहिए and we should try to cover it comprehensively, yes, rather than just thinking कि this was a trend so we should read more about this, because trend हम थोड़ा बहुत तो follow कर सकते हैं, yes, but जितना अलग अलग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते. yes, that's what I wanted to say. Yes, yes. And so we are also thinking like because nowadays there is lot of importance, जैसे कई सारे toppers से जब हमारी बात होती है, so they are emphasizing more on data. So we thought कि why not present or keep a collection of data जो भी हमारे students के लिए important हो. So do you think that would it be helpful for the students, and how can we like improve that? See, these data, facts, important judgments and the committees, these are important like anything. मतलब I and one of my friend Rakesh used to discuss like कि बाकी कुछ अगर last day में revise हो न पाए हो, that is a different thing, लेकिन ये जरूर रिवाइज होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि अदर थिंग्स यू विल बी एबल टू रिकॉल क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, कोई सबकॉन्शियस मेमोरी में रहेगा. लेकिन ये अगर इमीडिएटली नहीं देखा है तो वो डिफिकल्ट रहेगा. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू कि टेस्ट सीरीज अगर लिख रहे हैं उस समय मान लीजिए कोई जीएस इंडियन सोसाइटी का लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो उसके सारे 8-10 जो सब पॉइंट्स हैं उनके सारे डेटा भी तैयार करके फिर ही टेस्ट लिखने जाते थे कि कुछ भी हो वो डेटा मैंने जो याद किया है उसको किसी न किसी फॉर्म में आंसर में लेके आना है. नॉट ओनली विद डेटा, इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑल्सो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है बनी है उन टॉपिक से रिलेटेड, उनके अच्छे अच्छे सजेशंस 2-3 पॉइंट ही सही. इवन एसडीजीज भी आपको याद रहने चाहिए कि आप उसको कोट कर सकते हैं, स्पेशली इन द वे फॉरवर्ड में या किसी एरिया में. तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली नॉर्मल जनरल आंसर से काफी बेटर रहेंगे. और दिस हेल्प मी एनीथिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे GS 1 और 2 में मार्क्स इसका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली अंडर इंडियन सोसाइटी. और GS 2 में तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने डेटा फैक्ट डाला था एंड पर्टिनेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. राइट. इसीलिए सर हमने ये सोचा कि बिकॉज डेटा एंड फैक्ट्स लाइक जैसे कौन सी जजमेंट है, कौन से केस है, इट इज वेरी हाई रिस्की.
कि मतलब अगर वो हमने सही सही डाला तो इट कुड फेच अस वेरी मच गुड मार्क्स, बट अगर हमारा गलत हमने डेटा डाल दिया उसमें या कुछ भी बिना सोचे समझे डाल दिया तो इट कुड बी वेरी पेनलाइजिंग आल्सो। यस यस। सो वन उसमें हम बहुत ही एक चीज यस और ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे कि कई बार हमको आपको कोई सवाल नहीं आता रहता, पूरी तरीके से नहीं आता रहता, वहां पे भी ये बहुत हेल्प करती है। लाइक आपका इंट्रो पार्ट डेटा से कवर हो गया, कंक्लूजन पार्ट किसी कमिट से कवर हो राइट गया, राइट इंटरेस्टिंग यस हेडिंग आपने मार दी, बॉडी जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, आप कुछ भी आप पॉइंट थोड़ा पर्टिनेंट उससे लिख दीजिए। जैसे आपके राइट 20 सवाल आए, 15-16 आपको आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे ये चीजें बहुत ही हेल्प कर देती हैं। उन क्वेश्चंस को भी आप उसी एवरेज, मोर देन एवरेज या एवरेज लेवल पे लिखने के लिए अगर आप एक एल्गोरिदम इन वाले चीजों से फॉलो करें, डेटा और कंक्लूजन, यस इंट्रो और कंक्लूजन आपका कवर्ड है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा है कुछ पर्टिनेंट करके लिख दो, तो जो आप सरेंडर करते हो उस क्वेश्चन में उससे काफी बेटर मार्क्स पाओगे इन अभी। राइट राइट एब्सोल्युटली। एंड सो अभी हम ऑप्शनल की बात करें अगर, तो व्हाट फैक्टर्स डिड यू कंसीडर टू, क्योंकि ये ऑप्शनल ऐसी चीज है जो जब बच्चे प्रिपेयर करने जाते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स शुड यू कंसीडर बिफोर चूजिंग द ऑप्शनल? सी मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा गेट का था, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का था। सो मेरा ये था कि मैकेनिकल वाज माय फोर्टे। लाइक मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी डेप्थ में पढ़ी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आई नेवर डाउट, मतलब मुझे कभी ये चीज चूज करने का ऑप्शन ही नहीं था। मींस आई हैड फ्रॉम डे वन इटसेल्फ कि मुझे मैकेनिकल ही लेना है। लेकिन अगर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं और उसमें काफी एप्ट हैं, तो दे शुड बी कंसिडरिंग द टेक्निकल ऑप्शंस, बिकॉज उसमें प्रॉफिट का बहुत ज्यादा डोमेन है, मतलब फायदा है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया 2-3 बार, एक लेवल से बियॉन्ड अगर आप चले गए, तो यू आर बाउंड टू गेट मोर मार्क्स, अनलेस अनटिल आपका कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, वो चीजें। और इवन ह्यूमैनिटीज वाले भी अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स से उसको बहुत ही इन डेप्थ पढ़ें, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन इंटरेस्ट उस टॉपिक में, तो वो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं टेक्निकल ऑप्शन में, मेरा ऑप्शनल टेक्निकल था, सो मैं टेक्निकल ऑप्शनल का ये जानता हूँ कि अगर आपको टेक्निकल ऑप्शन स्पेशली मैथमेटिक्स हुआ, मैकेनिकल हुआ, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, अगर आपने उसको एक लेवल से ऊपर कर लिया है, तो वो आपका ज्यादा मार्क्स लाने का काफी प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग सर्विसेज से कम डेप्थ में आता है मैकेनिकल। तो यस अगर यस और इवन सिलेबस भी थोड़ा छोटा है, 2-3 सब्जेक्ट्स नहीं है पेपर 1 और पेपर 2 में। तो अगर आप विड्थ ऑफ द सिलेबस को एक बेसिक लेवल पे करके जाइए, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि जनरली वी टेंड टू डाइग्रेस इन द ऑप्शनल, स्पेशली टेक्निकल ऑप्शन। उसमें आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए, स्पेशली इंजीनियरिंग ऑप्शंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज और इवन फॉर द सिविल सर्विसेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखते हुए पढ़ाई करनी है। टॉपिक पूरा पढ़ना है, मोर एम्फेसाइज टुवर्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली वो जो 1-2 वीक गैप मिलता है हम लोगों को, उस एक वीक में तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस रहना है। गॉट ओके। सो बेसिकली टेक्निकल ऑप्शनल उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए जो उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, बिकॉज इट विल गिव देम मोर प्रॉफिट यस, कंपेयर टू एनी आर्ट्स और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, अगर वो उसमें स्ट्रांग है तो। और इवन पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है अगर आप उसमें वो है, मतलब क्योंकि उतने डेप्थ में सवाल नहीं आ रहा है, तो आप टाइमली कंप्लीट करके क्वेश्चंस पे स्विच कर सकते हो। बस वन थिंग टू बी एम्फसाइज्ड कि कैलकुलेशन के टाइम थोड़ी स्पीड स्लो रखें, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, फाइनल आंसर गड़बड़ हो गया, तो भले कुछ थोड़ा बहुत स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन दैट विल बी वेरी नॉमिनल। सो आपका फाइनल मार्क्स बहुत कम हो जाएगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो कैलकुलेशन को बहुत ही मतलब धीरे से ही लेकिन अच्छे करना है। और आजकल सबसे अच्छे 991EX करके कैलकुलेटर्स भी अलाउड है, तो ट्राई टू यूज द मोस्ट एडवांस कैलकुलेटर, उनको प्रैक्टिस भी करो। मैट्रिक्स बना के कई सारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देती हैं वो कैलकुलेटर्स, सो डोंट यूज दोस वेरी स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। जो एकदम एडवांस कैलकुलेटर्स अलाउड है इस एग्जाम में, 991EX इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनमें काफी चीजें आप जैसे डेटा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वो सारी कैलकुलेशंस वो करके दे देता है। यू शुड बी जस्ट फाइनली वहां से आंसर कोट कर दो, और वहां पे एक चार्ट बना दो, बस पुट कर दो, लेकिन आपका फाइनल कैलकुलेशन, फाइनल आंसर कैलकुलेटर के आंसर से वहां पे लिख दो। एंड सो इसमें आप स्केलिंग को कितना, या स्केलिंग क्या होती है, एंड इज देयर पार्ट मार्किंग तो होती है आई थिंक, बट व्हाट इज योर रिमार्क ऑन दिस? I haven't gone through very in detail with regard to scaling, but जितना मैंने सुना है कि अगर आपके मार्क्स मोर देन एवरेज हैं तो स्केलिंग विल हेल्प यू, एंड आपके अगर मार्क्स बिलो एवरेज हैं तो आपको स्केलिंग डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द अदर साइड,
क्योंकि ऑप्शनल ऐसा एरिया है कि जिसको अगर जैसे GS1, GS2 और GS3 को जितना टाइम देते हैं हम लोग, उससे कम समय में पेपर 1 और पेपर 2 किसी भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल या किसी भी ऑप्शनल के जल्दी कवर होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैकेनिकल का। तो अगर आप ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दीजिए तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। जितना इनपुट दिया उसी के प्रोपोर्शनेट में आपको आउटपुट मिलता है ऑप्शनल में, स्पेशली टेक्निकल ऑप्शनल में। तो अगर आपने उस एवरेज मार्क्स को क्रॉस कर लिया है तो you'll be very in the comfortable zone और अच्छे मार्क्स आने के चांस ज्यादा रहेंगे ऑप्शनल में। Got it. Okay, sir. Now we'll be opening the forum for all the joinees, and so anybody who wants to ask a question could ask. The forum is open. Do we have a question? Hello, sir. हेलो जी। Sir, my name is Vijay Lakshmi. I had a question about how did you schedule a revision every day? रिवीजन एवरी डे का नहीं था, मतलब लाइक मेरा ये रहता था कि टॉपिक, जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो एंड टू एंड पढ़ लेना है। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड टू एंड पूरा पढ़ाई कर लेनी है उसकी, फिर दूसरे टॉपिक्स पे स्विच कर जाना है। लेकिन जैसे 2-3 रीडिंग के बाद यू विल गेट टू रियलाइज कि अब आपकी रिवीजन काफी फास्ट होने लगती है। तो जैसे एग्जाम के करीब, प्रीलिम्स करीब आए चाहे मेंस करीब आए, में आपको जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 दिन लगेगा, मतलब 3-4 दिन एट मैक्स, और पूरी हिस्ट्री को आप 7-8 दिन में अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ा है सीरियसली, और टेस्ट सीरीज और सीरीज उसके पहले लगा रखे हैं। तो मेरा टारगेट मतलब टॉपिक ओरिएंटेड ही रिवीजन होता था, डेली बेस पे नहीं होता था। Right. Any other questions? Yes, Deep. कुछ लोग wants to speak शो कर रहा है बट उनकी आवाज नहीं आ रही। If there is a question, please ask. Otherwise, we can share the Google Doc with you all. You can ask those questions later also. We'll wait for few more seconds and then. Sir, for current affair magazine, which magazine did you refer? आई रेफर द शून्य आईएएस, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा। शून्य आईएएस वेरी कंसाइज, काफी छोटा रहता है, 35 से 40 पेज में दिया रहता है। तो इसके लिए 2 चीज कर सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो दैट इज वेरी फाइन, तब आपको शून्य आईएएस पूरा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप आपने न्यूज़पेपर रीडिंग उतने इन डेप्थ नहीं की है अक्रॉस द मंथ, तो जैसे अगर जुलाई मंथ का अगस्त में आया तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने शून्य आईएएस की वो लेकर आया 30-40 पेज का, और एक एक टॉपिक को गूगल सर्च कर करके पढ़ा। तो गूगल सर्च करके पूरा उसका कंटेक्स्ट आ जाता था एक बार, पूरी जो भी उस मंथ में उसका न्यूज रहता था, बाकी वो समरी एक तरफ से शून्य आईएएस में दिया ही रहता था। तो एक अगर आप पूरा 1 मंथ का करते हो तो मेरे से 1 या सवा दिन में होता था पूरा, 1 दिन में मिनिमम। तो लेकिन आपका ये फायदा हो जाता है कि आपकी वो हर चीज एक ही काफी छोटे जगह में इकट्ठी हो जाती है, और आपको अगर कुछ वैल्यू ऐड करना है तो साइड में आप प्लस करके उसको भी ऐड करके लिख सकते हो। सो दैट यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहता था। लाइक दिस हैज हेल्प्ड मी लाइक एनीथिंग, स्पेशली विद रिगार्ड टू द प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स। Okay. Any other question? Last question, if anybody has a question. Okay. So I would like to thank Vivek sir for giving us such good insights for this time and giving us this time from his busy schedule. And this will no doubt help all the aspirants. Right? Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. And lastly, I would thank all the aspirants who have joined. And Paper Clerks will be sharing the transcript of this session for all of us to benefit. You can share it with your aspirant friends, and pretty soon we'll be conducting more such sessions on your questions, based on your questions and based on your needs. Right? Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thanks a lot.